اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اور فیس بک کو میں نے اسلامی طور طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میں نے قرآن کریم کی جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی حساب سے اصلاح اور تبلیغ، اصلاح مسلمانوں کے لیے، تبلیغ غیر قوم کے لیے، میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ میری کوشش کو یوٹیوب چینل اور فیس بک آگے بڑھنے میں میرا سہایتا دے اور حق بات کو ہر انسان تک پہنچانے کے لیے مجھے مدد کرے، ایسا میں آشا کرتا ہوں اور بھروسہ بھی کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل اور فیس بک میری یہ کوشش کو، میری یہ پروفائل کو اوپن کرے تاکہ ہر شخص بھی دیکھ سکے یوٹیوب چینل کے ذریعہ یا فیس بک کے ذریعہ۔ آشا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں، انشاءاللہ، آمین۔ ابھی سورہ طٰہٰ کا 3واں رکوع یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، سب کو معلوم ہے، ہر مذہب کو معلوم ہے، سب سے پہلا انسان کون پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام، جن کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد میں ان کو جنت میں کوئی بھی خوشی نہیں رہتا تھا کہ اتنا نعمتیں ہوتے ہوئے بھی، اتنا نعمتیں کھاتے ہوئے بھی بغیر خوشی سے ایسا ہی پیڑوں کے نیچے سوتے، بھوک لگتا ہے تو کوئی پھل کھاتے، اپنا زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگا کہ میں نے تو بشر کو تو بنا دیا لیکن اس میں دل میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس لیے آدم علیہ السلام کو ایسا نیند میں رکھ دیا، نہ سوتے نہ جاگتے۔ اسی حالت میں ان کے بائیں پسلی کا ہڈی کا ریڑھی سے، انہی کے بدن میں سے اپنا ایک ہڈی کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے دادی ماں حوا کو بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت مرد ایک ساتھ ہے۔ پھر بھی جو شیطان کے اچکانے کی وجہ سے دادی ماں حوا نے جو کھانا جو پھل منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کے لیے اچکا دیا، لیکن پھر بھی قرآن میں کہیں بھی جگہ پر دادی ماں حوا نے غلطی کیا، اس پھل کھانے کے لیے مجبور کر دیا، ایسا کوئی بھی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا جو خطا آدم سے ہوئی تو حوا دادی ماں حوا یعنی عورت کو دماغ کمزور ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پھل کھانے کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، اس کو کیوں بار بار یہ کرتے ہو، کیونکہ ان کو دھمکا دے سکتے تھے۔ لیکن اس میں میں غلط اندازے سے میں نے نہیں کہا، میں نے ایک اشارہ کر دیا۔ اللہم اغفر، ہر انسان سے بھی ایسا غلطی ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ اس میں کوئی میں آدم علیہ السلام کے خلاف میں یا کوئی خدا کے خدائی میں نے کوئی غلط اندازہ نہیں کیا، میں نے ایسا بتا دیا تاکہ وہ ان کو دھمکی دے سکتے تھے۔ لیکن مرضی الہی کی یہی تھی کہ یہ اس طریقے سے ہو جائے اور اس طریقے سے دنیا بس سے ہو جائے۔ مرضی الہی کی یہ ہے تو ہم آپ کون ہو سکتے ہیں اس مرضی الہی کو ہم روک سکے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، آپ نے جو غلطی کیا تھا اس غلطی کی وجہ سے دیکھو دنیا کے لوگ کتنا پریشان ہیں، آرام سے زندگی
जन्नत में बशर कर रहे थे, आपकी गलती की वजह से दुनिया में आके इतना मुश्किलातें उठाना पड़ रहा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपको तो अल्लाह ताला ने खुद कलाम फरमाया, यानी कलिमतुल्लाह, आपको इतना समझदारी है, इतना मालूम होते हुए भी आप ऐसे बात पूछना बहुत गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इरादा करता है वो कर देता है। ये सब कुछ लोहे महफूज में मंदर्ज है। जो होना था वो सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया। ये ऐसा होगा, दुनिया ऐसा बनेगी, ऐसा बिगड़ जाएगी और जहन्नम दोजख को आगे करना पड़ेगा, क़यामत बर्पा होगी। जहन्नम को अल्लाह ताला पूछ पूछ के भर देंगे और जन्नती आदमियों को मेहमान नवाजी, मछली के कलीजे सी मेहमान नवाजी होगा और जन्नती आदमी को सुबह शाम खाना मिलेगा और भी गोश्त भी मिलेगा, यानी गोश्त भी मिलेगा। दुनिया में लोग गोश्त खाना कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन अल्लाह का हुक्म है जो चीज़ें हलाल है उसको खाना। इसमें कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई गलत अंदाजे से ये बात नहीं किया कि मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है ये मालूम होना चाहिए हर इंसान को। कोई हर आदमी छुपा के रखने से हक बात जाहिर नहीं होगा, इसलिए हक बात को जाहिर करने के लिए मैंने कोशिश किया था। अगर इस कोशिश के दरमियान में मुझसे कोई भी गलती होगी तो अल्लाह से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मग़फ़िर ले। और अल्लाह ताला ने इंसान को किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। उसको फिर जन्नत में ले गया, फिर उसको इस दुनिया में लाया, यानी फिर दोबारा मिट्टी में ले आया, फिर इस मिट्टी में उसको खाने के लिए गज़ा बनाए। इस ज़मीन से खाना बनता है ना, हम पैदा किससे हो गए? इसी मिट्टी से, और इसी मिट्टी से हमको खाना भी मिलता है। और इस मरने के बाद में इसी मिट्टी में दोबारा जाएंगे और कल क़यामत के दिन इसी मिट्टी से दोबारा ज़िंदा होंगे और अपने नाम आमाल लेके अल्लाह के सामने जवाबदारी करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये ज़मीन और आसमान अल्लाह की है, वो अल्लाह की रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे दुनिया में और खाली हाथ जाओगे, लेकिन जाते वक्त तो जो ज़िंदगी तुमने बशर किया ना, उसका जो नाम आमाल है दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में, वो लेके अल्लाह के सामने जाओगे। इसी तरह के यहाँ पर आयत भी ऐसी है कि सूरह ताहा ने 30वां रुकू में बोलते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरिया। हमने तुमको इस ज़मीन से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसके बाद में एक उनका जो मनी है बदन से निकलता है, उसी पानी से बाकी नस्लों को अल्लाह ताला ने पैदा किया और इसमें ही हम तुमको बाद मौत ले जाएंगे और इसी में तुमको खाने के लिए रिज़्क़ भी दे दिया और मौत भी इसी ज़मीन पर दे दिया और मरने के बाद इसी ज़मीन में तुमको गाड़ेंगे और क़यामत के रोज़ फिर दोबारा इसी से तुमको निकालेंगे। कल क़यामत के दिन तुमको इसी मिट्टी से एक फरिश्ता ने एक ऐलान करेगा, तो सभी आदमी अपना सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठ पड़ेंगे और पुकारने वाले फरिश्ते की तरफ और भागेंगे। हर इंसान यही सोचेगा कि ये मेरे को पुकार रहे, ये मेरे को ही पुकार रहे। कहीं भी होगा, कहीं भी मुल्क में होगा, वो भी मैदान हशर के तरफ भागते हुए, चलते हुए नहीं भागते हुए आएगा कि इंसान आप जिंदा है, कहता है कि हम यहाँ है, हम वहाँ है, हम वहाँ है, हम अंडमान में है, हम अमेरिका में है, हम ऑस्ट्रेलिया में, हम इंडिया में, हम पाकिस्तान में, हम चाइना में, और आज वर्ल्ड में कहीं भी होगा। हर मुर्दा यही समझेगा जी उठने के बाद, ये पुकारने वाला फरिश्ता मेरे को पुकार रहे बोल के दौड़ते हुए मैदान हशर में आके खड़ा होगा। अल्लाह ताला बोलेंगे, ये देखो मेरा एक फरिश्ता ने एक ऐलान किया, तुम लोगों ने सब दौड़ते हुए, चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए मैदान हशर में आके खड़ा हो गए और इसके बीच में पुलिस रात को तय करते हुए आ गए
वहाँ पर जितने फरिश्ते होंगे सभी आदमी अल्लाह ताला ने और उनको सब आदमी को आप अपना ड्यूटी लगाएंगे, वो आप अपना ड्यूटी करते होंगे। इंसान को एक कतार बन के अल्लाह के सामने फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह है, बीच में कोई नहीं। अल्लाह के सामने हर इंसान को जाना पड़ेगा, हर इंसान को जाके उसके नाम आमाल से उसको हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद में अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक फैसला करेंगे, किसके ऊपर भी ज़्यादती नहीं करेंगे, किसके ऊपर कमी नहीं करेंगे, बराबर का फैसला करेंगे। जन्नत और दोजख नसीब होगा। जन्नत को अल्लाह, जहन्नम को अल्लाह ताला पूछ पूछ कर भरेंगे। सदक अल्लाह, अल्लाह ने एक सच कह दिया। क्या कह दिया? मैंने जहन्नम को इंसानों से, जिन्नों से और शैतान से, इन सब से तुमको भर दूंगा। ये गुमराह करने की वजह से, तुम गुमराह होने की वजह से। कुरान में तुमको बतला दिया था कि तुम गुमराह मत हो जाना, ये शैतान तुम्हारा शरीया दुश्मन है, उसे होशियार रहना। फिर भी तुम उसके कहने में आ गए, इसलिए जहन्नम तुम्हारे नसीब होगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, हमें शैतान मरदूद से, मलऊन से हमेशा ता क़यामत तक नस्ल ब नस्ल हम मेरे सबको शैतान मरदूद से हिफाजत फरमाए। ये दिन सिरातल मुस्तकीम यानी कुरान करीम को पकड़े रहे और इसको पढ़ते रहे मानी को भी, ताकि शैतान के हमला हम पर ना हो। शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए तो कोई उसको गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह की हिफाजत में हमारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तरफ ये दिन सिरात मुस्तकीम के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक कि मेरी बयान के दरमियान में जो भी गलती कोताहियाँ हो गए तो मुझे माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।